Good morning, class 10th. So we have already covered till electric potential. So we will start with our new topic, that is resistance. It is basically denoted by capital letter R. So what is resistance first of all? So when we start with the explanation part, we have already read about the term current. Secondly, we have read about the potential difference, that is capital V. So what is current? The number of electron flowing through it per unit time is our current, and potential difference is the difference by which there is a higher, it creates the difference basically between the higher concentration and a lower concentration, जिसकी वजह से movement is possible. Now another term is there, that is resistance. So what is resistance? Suppose that this is a conductor. I have explained you why we are using the term conductor. It has number of free electrons which is moving randomly. Random means होता है they are moving कहीं पे भी ununiformly, कैसे भी randomly they are moving. So they start hitting each other. Okay. So जो भी obstruction होता है, जो भी चीज़ों को रुकावट होती है, that is our resistance. Okay. So it basically oppose the flow of electric current. So what is the role of resistance in a conductor is just to oppose the flow of electric current. So before studying in detail, we shall have to study about the Ohm's law. So first of all, we have to study about the Ohm's law, then we can study that what is resistance and what are its factors. But पता हमें ये होना चाहिए कि that due to the presence of free electron, they collide with each other. Okay, when they start moving randomly in a conductor wire, what will happen? They start hitting each other, they start colliding each other, which causes certain disturbance. That is means the oppose of the flow of electric current, due to which, due to the terminology, we can say that it is happening because of the resistance which opposes the flow of electric current. SI unit of resistance is ohm, denoted by the symbol omega. इसको हम क्या बोलते हैं? Omega. Okay. So what is Ohm's law? First of all, if you want to note it down somewhere, you can note it down कि resistance क्या होता है. जो भी obstruction होता है in the path of the electron और electricity को जो भी रोकता है या oppose करता है, that is known as the resistance. Why it is happening? Because electron move randomly in a conductor wire, so they hit each other, which causes certain disturbance, which is also termed as a resistance. अब resistance की SI unit होती है ohm and denoted by omega. Fine. Factors अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक व्हाट इज ओम्स लॉ. सो जस्ट हैव अ रीडिंग पार्ट ऑफ दिस. Also write down somewhere if you want to write it down. After 1 minute I will clear up the content and then we will start with the Ohm's law. Fine. So first of all, I have given you the notes. It has been written in there, at constant temperature, the current flowing in a conductor wire is directly proportional to the potential difference, that is capital V. Okay. So now in detail इस statement को ही हम थोड़ा सा study करेंगे in a mathematical way. Fine. So according to the statement, you have to write down at constant temperature. ये लिखना important है, otherwise your marks will be deducted. तो at constant temperature, current flowing through a conductor wire is directly proportional to the potential difference. So this is our equation, right? हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमेशा ऐसे रहेगा. ओके. डायरेक्ट मीन्स अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट भी क्या होगा? इंक्रीज.
और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज किया तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का केस में क्या होगा, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज है तो दूसरी वाली डिक्रीज हो रही होगी, सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज है तो दूसरी वाली इंक्रीज हो रही होगी, राइट। सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दैट कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऑल्सो वी नो दैट जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, एंड प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी इज इक्वल टू आएगा एंड कांस्टेंट हमारा क्या होगा, दैट इज कैपिटल R। सो V इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू I। ओके, सो वेयर R इज अ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ R क्या होगी हमारी, R को हम लिख सकते हैं V बाई I। ओके, जिसकी SI यूनिट हमें पता है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा एक कंडक्टर में, करंट उसमें से क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो 1 ओम का एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, राइट। सो दिस इज अ स्टेटमेंट एज कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। बाय अरेंजिंग इट वी कैन राइट डाउन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक ही बात है, either we can took current before or we can took the potential difference before, right। so removing the constant symbol, जब भी हम constant का symbol हटाते हैं we have to proportionality symbol हटाते हैं, we have to introduce a constant value। अब यहाँ पे हमारी constant value is resistance, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा इज इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट हमारा क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज रेजिस्टेंस, वेयर R इज कांस्टेंट। ऑल्सो यू नो दैट R मीन्स क्या, हमारा रेजिस्टेंस, फाइन। V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज आर करंट। सो आपको स्टेटमेंट के साथ ये डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी प्रिपेयर करना है, दैट इज योर ओम्स लॉ। अब अगर इसकी बात करें वेरिफिकेशन की, तो जब भी अगर हम कोई भी सेटअप, अब अगर सपोज हमने एक कोई भी अरेंजमेंट सेट किया है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर अरेंज है और करंट के लिए अमीटर अरेंज है, जब भी हम रीडिंग्स चेंज करेंगे, लाइक थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, करंट चेंज होगा, तो जो भी इनकी वैल्यूज आएगी, अगर हमने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो ये हमेशा कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। हमने पढ़ा है कि हमेशा कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो V बाय I का ग्राफ विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बाय द NCERT book you have to read out the activity also where it is given how you can verify Ohm's law। सिंपली क्या करना है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रीडिंग्स है उसका एक टेबल गिवन होगा V बाय I। व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्टेन्ड होगा, दैट इज वाई अगर स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स R इज कांस्टेंट। ऑलरेडी ये जो हमारा ओम्स लॉ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। सो दिस वाज अ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ और ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन था, राइट। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस पहला चीज़ कांस्टेंट, दूसरी चीज़ जो करंट को अपोज करे, राइट। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देयर आर 4 फैक्टर्स विच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। सबसे पहले करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इस इक्वेशन से। ऑल्सो हम क्या देख रहे हैं कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज करेगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने आपको नोट्स में भी दिया हो। और अगर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, यही रिलेशन होता है इन्वर्स का। इन्वर्स मीन्स उल्टा, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अदर वन विल बी डिक्रीज, and if one quantity is decreasing the other one will be increasing, right। so these are the few of the observations जो हमने देखी in the Ohm's law। so I have given you the notes। इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला जो भी हमने रिलेशन ऑब्टेन किया है, SI यूनिट डिस्कस करी है, एंड व्हाट इज Ohm's law, दैट इज
अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया है उसके एंड पे, तो ऑलवेज देयर विल बी द फ्लो ऑफ 1 करंट ऑफ एम्पियर इन इट, राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ohm. So you have to learn the definition of 1 ohm. You have to learn the statement of Ohm's law और ये इसका derivation था. Fine. If you want to write somewhere, you can write it down. I'm giving you 2-3 minutes. Resistance of a conductor I have thoroughly explained you कि क्या होता है, notes पे भी मैंने लिखवाया है. Factors affecting और इसकी SI unit we have discussed, that is omega. Ohm से denoted करते हैं. Omega is a SI unit, okay, denoted by omega. सिंबल का नाम होता है ओमेगा, ठीक है. और एसआई यूनिट इसकी होती है रेजिस्टेंस की, दैट इज ओम. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर. क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है. फाइन. इन डिटेल वी विल स्टडी ईच एंड एवरी फैक्टर. देयर आर 4 फैक्टर्स. सबसे पहले लेंथ ऑफ अ वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटीरियल. इन डिटेल वी विल स्टडी ईच एंड एवरी फैक्टर्स. Then we will come to the next topic, that is resistivity. क्या होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. उनकी एसआई यूनिट भी डिफर करती है, किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है. एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट की कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. सीरीज में कैसे होता है और पैरेलल के केस में कैसे होता है. सो these are the topics we will cover in our next lecture probably. First of all, note it down this part in your notebook. इतना part मैंने notes में already I have attached the attachment in the note. This was the explanation part which I have given you. Okay, so write it down somewhere quickly. After 5 minutes I will be discussing about the factors affecting resistance in detail, right? So if you have any problem, you can ask me up in the doubt session. Tomorrow probably we are having a live class by 12 or 12:30. I will text you the timings, okay? Just have a look on that. So if part में कोई problem हो, you can ask me up tomorrow, right? So now we shall study about the factors affecting resistance. First of all, I hope so that it is clear what is the Ohm's law. For the verification, you can see that. If I talk about the verification, when you draw a graph V by I, ठीक है, taking potential difference in the y-axis and current in the x-axis.
तो जब भी आप रीडिंग्स लोगे सर्टेन, ये एम्पियर में होगा और ये वोल्ट में होगा। ओके, सपोज दैट 1 पे 5, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 25. So when you plot the graph, this is an example I am giving you. So what you observe that कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे V by I का, it is always a straight line. स्ट्रेट लाइन मीन्स कैसा होगा ये, कांस्टेंट, और जो ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है दैट इज आवर रेजिस्टेंस। तो V by I का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन। It is a verification of Ohm's law also. You can see in the NCERT books or in your living science book. And जब भी straight line आती है, that clearly means that this value is being constant. That means resistance is constant. Fine. So this was the verification of Ohm's law. इसको हम also क्या कह सकते हैं, verification of Ohm's law. ठीक है, इसको डिटेल में स्टडी कर लेना। आई एम रबिंग दिस पार्ट। सिंपली याद रखना, V by I का ग्राफ बनाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस करंट हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तभी वो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली इट हैज 4 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है हमारा लेंथ। फर्स्ट फैक्टर इज length of conductor. So length of conductor is always directly proportional to resistance. Why? क्यों ऐसा होता है? जितनी ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही डिस्टर्बेंस होगा। ऑफ कोर्स सी बात है। ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जब ये बहुत दूर तक जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। जितनी लेंथ उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। I will attach the homework and I will discussing up the homework tomorrow in my live class, right? Area of cross section of a conductor. What is area of cross section now? Cross section मतलब ये एरिया, जितना बड़ा या जितना ब्रॉड ये एरिया होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, उतनी ईजिली निकलेगा। मतलब अगर सपोज करो बहुत नैरो जरा सी जगह दी है, तो अगर लाइन बाहर निकलेगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब वे में निकलेगी। एंड अगर मैंने एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, सपोज इतना बड़ा पैसेज है, तो इलेक्ट्रॉन्स स्मूथली वहाँ से निकल जाएंगे। अगर ये स्मूथली निकलते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस कम होगा अगर एरिया ज़्यादा है, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। थर्ड इज योर नेचर ऑफ द मटीरियल। लाइक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर है उसका ज़्यादा होगा, सो ऑन। फोर्थ वन इज द टेम्परेचर। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स, राइट। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स। इन्हीं को कंबाइन करके रजिस्टिविटी आ जाती है। रजिस्टिविटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय रो। तो सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को हिट करेंगे। जितना वो हिट करेंगे उतनी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सेकेंड इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम रेजिस्टेंस। फोर्थ इज नेचर ऑफ द मटीरियल। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल कि रेजिस्टेंस तब ज़्यादा होगा जब वो इंसुलेटर है। कंडक्टर में कम होगा तभी इलेक्ट्रॉन फ्लोज उसमें आसानी से होता है। टेम्परेचर में जितना टेम्परेचर हम देंगे उतना ही वो अपनी बॉन्ड
ब्रेक करेगा इलेक्ट्रॉन और इधर उधर मूव करेगा. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डायरेक्टली proportional to the resistance. So these are the four factors affecting resistance. Now the next term is resistivity. What is resistivity? When we combine these two terms of the equation, अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा लेंथ पे एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. अगर हम इसको कंबाइन करें तो L बाय A आ जाएगा. प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है. दैट मीन्स रो इज इक्वल टू L बाय A. जो हमारा रो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रो, RHO. ठीक है, इसी रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. राइट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन. दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी. ठीक है, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से. ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम और मीटर. कैसे? अगर हम ट्रांसपोज करें इसको, रेजिस्टिविटी कैसे आ जाएगी? यानी रो को इधर रखा तो रेजिस्टेंस इनटू A अपॉन L. ये इसका क्या बन गया? फॉर्मूला. वेयर L इज लेंथ, A is area of cross section, I will give you the notes also इसका, and R is resistance and rho means ये जो सिंबल है थोड़ा सा P है टिल्टेड, इसको हम रो बोलते हैं. यही हमारी क्या है? रेजिस्टिविटी. तो जब हम इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए देखेंगे तो रेजिस्टेंस होता है ओम में, एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. कैसे? वैल्यूज पुट करो, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, वी गेट ओम मीटर. तो निकालेंगे कैसे रिलेशन? यू हैव टू राइट डाउन द थ्योरेटिकल पार्ट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया of the cross section. When we combine from equation 1 and 2 we get L by A. proportionality हटेगी, we introduce a constant rho, that is resistivity. So transposing the values we get resistivity is equal to resistance into area of cross section upon L. Fine. इसकी SI unit is ohm meter, right? So this part we have covered till resistivity. अब resistivity ना तो लेंथ पे डिपेंडेंट होती है ना ही थिकनेस पे. इट ओनली डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटीरियल. इसके फैक्टर्स केवल 2 फैक्टर्स है, ओनली 2 फैक्टर्स, राइट. वन इज टेम्परेचर and the other one is nature of the material. It does not depend on the length and thickness of any of the material. Fine, because it's a constant value. तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ it depends on the temperature and the nature of the material, right? So ये इसकी SI यूनिट थी ओम मीटर. आई विल अटैच द अटैचमेंट सो दैट आप यहाँ तक के नोट्स लिख लो. डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट I can give you the definition also on the notes part. तो रेजिस्टिविटी एंड उसके फैक्टर्स हमने कवर अप कर लिया है. ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो आई विल अटैचिंग अप द नोट्स, आई विल अटैचिंग अप द असाइनमेंट सेक्शन, जो भी होमवर्क आपको कल तक कवर करना है, सो दैट यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास. If there is any problem, you are free to text me on the School Log app as a doubt, right? I will be clearing up your doubts over there. That's all for today. Thank you.